اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج بادشاہ کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیان کر دو۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کے خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں اس دنیا کا شاید خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ بادشاہ ایک بار پھر بہت زور سے ہنسا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بھلا؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہے۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی بادشاہت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ ایک بار پھر رکا اور پھر بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد لکارے پر چوٹ لگائی اور آواز بلند فرمایا، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے اس نے سوال رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن بھی آ ہی گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی
पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही दूध का प्याला पड़ा था जिसे फकीर का कुत्ता शराब शराब की आवाजों के साथ पीता जा रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी तो कहका लगाया और बोला, जनाबे आली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे ही पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, अब आपने कैसे अंदाजा लगाया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा, बोरिया के नीचे शाही खल्क बिछी थी। ये वो कपड़ा था जो बादशाह अपने सबसे करीब तरीन वजीरों को देता था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इसी सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आप ही की तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर जोर से हंसा और बोला, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए। आधी सल्तनत मिली भी थी, लेकिन मैंने वो परवाना फाड़ दिया था। बादशाह को सलाम किया और इस झोंपड़ी में आकर बैठ गया। तब से मैं और मेरा ये कुत्ता दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये फकीर की बेवकूफ़ी के ऊपर सवाल करने का टाइम नहीं था, बल्कि वजीर के लिए जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वजीर एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों के जवाब तो मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसकी जिंदगी ही है। हम में से हर शख्स जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए समझ बैठा है और उसके धोखे में आकर अपनी आखिरत को ही भूल जाता है। फकीर के ये दोनों जवाब बिल्कुल सही थे। इसके बाद वजीर ने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर फिर हंसा और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर भी कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये 8 पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुम्हें ही करना होगा। वजीर बहुत बड़े कश्मकश में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा। वो सोचता रहा यहाँ तक के जान और माल जीत गया और अपनी इज्जत हार गया। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में पूरा दूध पी गया। फकीर फिर हंसा और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उसको कुत्ते का जूठा दूध पीने पर मजबूर कर देती है और ये वो सच्चाई है जिसने मुझे बादशाहत
छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और फिर मैं बादशाहत छोड़कर इस झोंपड़ी में बैठने पर मजबूर हो गया। मैं जान गया था कि मैं जू जिंदगी के धोखे में आऊंगा। मैं मौत की सच्चाई को भूलता चला जाऊंगा और मैं मौत को जितना भूलूंगा मैं उतना ही कर्ज की दलदल में धंसता चला जाऊंगा। मुझे इस दलदल में सांस लेने के लिए कर्ज का गंदा दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की झोंपड़ी से बाहर निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जू महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा होता चला जा रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इसी एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। अचानक उसके सीने में एक खौफनाक दर्द उठा। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी जान उसके जिस्म से परवाज कर गई। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें किसी न किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर कर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम लोग कहीं मौत को भुला तो नहीं बैठे। हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए जिसने जिंदगी और बादशाहत की खातिर कुत्ते का जुट्ठा भी पी लिया और फिर शर्मिंदगी के मारे अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया उस दिन हम कर्ज के इन गंदे प्यालों से आजाद हो जाएंगे। फरमाया गया, तुम दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर, यानी मुसाफिर की एक मंजिल होती है और हमारी मंजिल जन्नत है, ना कि दुनिया। लेकिन हमारा नफ्स हमें लंबी लंबी उम्मीदों के चक्कर में डालकर खुदा से गाफिल कर देता है। ना मौत के बारे में सोचते हैं और ना ही जिंदगी के धोखे के बारे में सोचते हैं। कभी सोच भी ले तो गफलत से सोच को झुठला देते हैं। अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, रिटायरमेंट ले लेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे, फिर मैं होगा और मस्जिद होगी। ये कैसा बंदा गहरा होता है जिसकी मलकियत एक सांस भी नहीं होती। एक सांस लिया है, पता नहीं दूसरी सांस ले पाएगा या नहीं। बैठा हुआ है, पता नहीं खड़ा हो पाएगा या नहीं। दाएं तरफ सलाम फेरा है, बाएं तरफ सलाम फेर पाएगा या नहीं। लेकिन दावे ऐसे करता है जैसे मानो पूरी दुनिया ही उसके कब्जो इख्तियार में हो। आज भी कब्रिस्तानों में बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी, लेकिन नमाज शुरू करने से पहले ही उन्हें मौत आ गई और वो बगैर नमाज पढ़े ही इस दुनिया से चले गए। हर इंसान इस दुनिया में आर्जी जिंदगी गुजारने आया है, मगर इंसान इसी दुनिया को ही अपना असल मंजिल समझता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अपने नेक और मुत्तकी बंदों की पहचान और अपने महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के लिए इम्तिहान गाह बनाया है। दरअसल वो आजमाना चाहता है कि कौन है वो इंसान जो मुझसे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, और कौन है वो इंसान जो इस आर्जी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को खराब करता है। हालांकि जब मौत आएगी तो इंसान के कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चंद दिन खानदान के लोग याद करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, लंबी जिंदगी के धोखे से बचकर अच्छे आमाल की तरफ हमें फौरन राग़िब हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपना मुहासबा करने की तौफीक दे। खुद से और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची
سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔